Hello and welcome back to your channel Physics Safari. My name is Abhishek and today is going to be the third video lesson on the center of mass. Let's have a quick understanding of what we have done before. So in the first video we had spoken about the center of mass. Second video I have taught you how to find the center of mass of the discrete particle, and the special case was two particle system. So that was something which we have done in the previous video. Today I'm going to discuss about the center of mass of the continuous mass system where the mass is uniformly distributed. In the first video I have told you that mass distribution could be uniform and it could be non-uniform as well, but for now we are only going to take about the uniform distribution. Time bachta hai, then I'm going to discuss about the non-uniform distributions as well. Now before I get into this lesson, I would like to tell you that there are only few derivations that is of your concern, and for the NEET and JEE you have to memorize certain formulae. उसके मैं लिस्ट आपको दे दूंगा, because until you know those formulae it's going to be very difficult to solve the question at the time of exam, क्योंकि यहाँ पे आप बैठ के derive करने का आपके पास समय नहीं रहेगा. So keep this in mind. Derivation definitely is important because that will help you to understand the process of approaching a problem, but that is not which is going to help you during the time of exam. So आपको फॉर्मूले याद करने होंगे, और हमने पहले डिसाइड किया था कि हम साथ मिलकर इस बैरियर को खत्म करेंगे. डिफिकल्ट चैप्टर है बट नामुमकिन नहीं है, बहुत आसान है अगर आप स्टेप बाय स्टेप साथ में प्रैक्टिस करते हुए करो तो. ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू दैट इन द next few days I would say I'm going to start the 12th portion also and the rotation motion of the class 11th. तो मैं 12th के टॉपिक्स को भी स्टार्ट करना जा रहा हूं, and if you guys have some topics in particular which you want me to teach, which you want me to sort of upload the videos, do let me know in the comment box, and do not forget to like, share and subscribe if you do like the way I teach. ठीक है जी, चलो इसी के साथ फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग. Center of mass of the uniform distribution, center of mass of continuous body with uniform mass distribution, with uniform mass distribution. हम लोग फटाफट करेंगे, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, हम लोग जल्दी से रफ्तार में इसको खत्म करते जाएंगे. Now, when I talk about the uniform mass distribution, first thing that would come to your mind is the rod, uniform rod of a certain length. Second क्या आ सकता है? Ring. Circular ring हो तो कोई दिक्कत नहीं है, semi circular ring आएगा. Third thing which could come to your mind is the disc, semi disc. फिर cone आ सकता है दिमाग में, cylinder आ सकता है. तो I'm not going to teach you all of derivations. A few of them I'm going to teach and few you are going to do on your own. और दिक्कत आएगी तो मेरे को बताना. तो टुडेज वीडियो आई एम गोना गो वेरी स्लोली, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझा दूंगा, आप उसको ढंग से फॉलो अप करेंगे, देन टेक माय वर्ड्स, यू विल बी एबल टू डिराइव द रेस्ट ऑफ इट. ठीक है जी बच्चों, फाइनली हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं. ओके, द फर्स्ट थिंग इज द रॉड. देखो, रॉड इज वेरी मच सिमेट्रिक फिगर, सिमेट्रिक एलिमेंट. तो लॉजिकली हम बता सकते हैं कि भैया इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है, बट हमने वो करना नहीं है, हमने डिराइव करके सीखना है कि हाउ टू रीच आउट अबाउट टू दैट पर्टिकुलर रिजल्ट. तो मान लो प्यारे बच्चों कि वी हैव अ रॉड, एक रॉड मान लिया जिसका कि लेंथ यू कैन चूज टू बी L, इसका मास M है, और लेंथ मान लो इसका एक स्मॉल l मान लो, एक कैपिटल मान लो, आपकी मर्जी. स्मॉल लिखने में ज्यादा अच्छा लगता है, मैंने इसलिए लिख दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना. अब क्या करना है कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है. देखो लॉजिकली इट्स सिंपली यूनिफॉर्म, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी आई कैन से इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे लाई करेगा, दैट इज L/2 फ्रॉम आइदर ऑफ द एंड लाई करेगा. नॉट बिग डील, बट फिर भी हम इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, समझेंगे. इन चीजों में आई नो इट्स अ कंटिन्यूअस मास सिस्टम, तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा बच्चों, दैट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ dm और r अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे. बिफोर आई गो फर्दर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मीनिंग ऑफ दिस r. स्टार्टिंग में नहीं बताया था, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम वेयर आई कैन टेल यू व्हाट एग्जैक्टली दिस r स्टैंड्स फॉर. अभी तक हम क्या देखते आ रहे थे कि r क्या है, उस पर्टिकुलर पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम. बट अभी अपन के पास क्या है, कंटिन्यूअस मास सिस्टम. तो इस कंटिन्यूअस मास सिस्टम में आर है क्या भैया,
बात समझ रहे हो ना? इन द डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम वी हैड सीन दैट सिग्मा ऑफ dm, sigma of mr, r was the you can say the position vector of that particular element. वो जो एक मास पार्टिकल एलिमेंट था उसका था पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, है ना जी? ऑब्वियसली पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से लेते हैं, बट एनीवेज ठीक है। इस केस में अपने पास तो कोई पार्टिकल है नहीं, we do not have even a single discrete particle, then what is this r all about? So this r, my dear kids, this r is the, write down, center of mass of the elementary particle, of the elementary particle. अब बोलोगे सर एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है? Now this is the crunch of this lesson. You should know how to choose the elementary particle. For instance, for example, मार्कर को देख लो। इस मार्कर को अगर मैं इनफाइनाइट मार्कर नहीं, बूम 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 इससे काम चलाते हैं ना। You just look at this front part, इसके फ्रंट पार्ट को देखो आप। If I cut this into infinite parts में इसको हम vertically कट कर देते हैं तो क्या मिलेगा? एक छोटा सा पतला सा strip ना। So we can get infinite number of small strips जिसका थिकनेस मान सकते हैं dr, dx, dy, आपको जो मानना है ना। तो अपने को अल्टीमेट आइडिया क्या है कि स्ट्रिप्स मिलेंगे, छोटे स्ट्रिप्स, और उन छोटे स्ट्रिप्स को अगर हम वापस से कंबाइन कर दें तो मेरे को एक पूरा का पूरा डस्टर मिल जाएगा। बात समझ रहे हो? मींस इफ आई जस्ट गेट दिस डस्टर divided into infinite number of parts, like ऐसे टिक 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 ना, समझ रहे हो ना? तो this is called elementary particle, क्योंकि अगर ऐसे infinite number of strips को हम ऐड कर दें तो मेरे को ये मिल जाएगा। आप समझ रहे हो? उसका हम लिमिट ऑब्वियसली डिफाइन करेंगे कि यहां से यहां तक चाहिए, फिर जहां तक चाहिए, दैट्स कंप्लीटली अपॉन द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट्स। बट अपने को इतना समझ में आ गया कि ए है आपका एलिमेंट्री पार्टिकल्स। जैसे आप एक घर बनाते हो, the bricks gonna make the wall, तो उस वॉल का एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है? the bricks. If you combine those bricks you're gonna get the wall. तो एलिमेंट्री पार्टिकल वो एलिमेंट्स होते हैं, वो जो पार्टिकल्स होते हैं कि which when combined that is gonna give you the entire element. अगर हम इस एलिमेंट्री पार्टिकल को कंबाइन करें तो मेरे को पूरा का पूरा वो पार्टिकल मिल जाए, उसी को बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। हाँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक केस में एलिमेंट्री पार्टिकल ऐसे स्ट्रिप्स हो, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देयर कैन बी केसेस जहां पे हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल्स कुछ और हो सकता है, समझ रहे हो? वो हो सकता है कि वहां पे मेरा एलिमेंट्री पार्टिकल ही सर्कल हो जाए। आप ऐसा समझो, आप द बॉल यू टेक, द कटोरा छोटा सा, जस्ट इन्वर्ट इट, उसके ऊपर एक और रखो, एक और रखो, एक और रखो, ऐसे करते करते यू विल गेट अ हेमिस्फीयर मिल जाएगा आपको। यू विल गेट अ हेमिस्फीयर। वो कैसे बना? छोटे स्मॉल हेमिस्फीयर को ना आप एक सर्कुलर डिस्क को एक के ऊपर एक रखते जाओ, आपको सिलेंडर मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? तो दीज आर द वेज इन विच यू हैव टू सिलेक्ट द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और आपको सिर्फ क्लास 11th में नहीं, 12th में भी काम आने वाला है, इस बात को अच्छे से समझो। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस वन, हमारा पहला काम क्या है? इसमें एक ऐसा एलिमेंट्री पार्टिकल लेना है कि which when added for infinite number of times should give me this rod। और बहुत ही क्लियरली मेरे को दिख रहा है कि I'm going to take the elementary particle as this way, a strip of, let us suppose, इसका thickness मान लो dx, which is at position of x from the left end of this rod। और इस लेफ्ट एंड को मैं ओरिजिन मान लूं तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। I'm going to assume that a left जो इसका edge है of the rod is at the origin। कोई दिक्कत? Anyone? Any issues with this? I believe बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे? इसका मास कैसे निकाले? बिकॉज आई वॉन्ट दिस मास। मेरी बात को ध्यान से धीरे सब सुनना। आई वॉन्ट दिस मास। ये मास किसका है? दिस इज द मास ऑफ दैट एलिमेंट्री पार्टिकल। इसको भी ऐड कर लो, मास ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। उस एलिमेंट्री पार्टिकल का मास होता है ये dm, which is a representation of a small mass. So I have two targets to define, two targets to figure out. Small dm is one target और r तो मेरे को दिया है, और second target is to find the integration by setting the limits. तो पहला टारगेट को पहले पूरा करते हैं, dm निकालने का प्रोसेस निकालो। Step 1, finding dm। ये पहला क्वेश्चन है, तो I'm going to give you algorithm in step by step। मेरे को पहला काम क्या करना बच्चों? dm निकालना है। ओके, एक सिंपल सा बात है। If you go to a market and you are supposed to buy 5 kg of apples, if you know the price of 1 kg of apples, you can easily say, okay, fine, 5 times of price of 1 kg apple is going to be the price of the 5 kg apple.
अगर आपको 1 kg के प्राइस का पता है तो आप 2.5 का निकाल सकते हो, 9.9 का निकाल सकते हो, 2000.5 का भी निकाल सकते हो। सो इट इज एसेंशियल कि आपको पता होना चाहिए इस रॉड का जो मास डेंसिटी है वो कितना है, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। Well, this is going to be a new term for you, but I'm sure you guys will be able to understand this. Now, mass density. मास डेंसिटी बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। 3 तरह के डेंसिटी दिखेंगे आपको, लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी वो होता है जब मास एक लेंथ पे एक लीनियरली वो स्प्लिट होता है। एरियल मास डेंसिटी वो होता है जब मास किसी एक एरिया में स्प्रेड है, दैट इज व्हेन वी टॉक अबाउट द एरियल मास डेंसिटी। एंड द वॉल्यूमेट्रिक इज जब मास एक किसी वॉल्यूम एक 3D फिगर में डिस्ट्रीब्यूट हो, उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। स्फीयर का मास पूरा उसके, सॉलिड स्फीयर का मास पूरा उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट इज गोना बी द वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। ओके, तो फटाफट देखते हैं इस केस में मास डेंसिटी क्या होगा, दैट वुड बी गिवन एज मास पर यूनिट length, that mass upon length is going to be your linear mass density। इसको लैम्डा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मास हमने टोटल कितना माना था m, टोटल लेंथ कितना था l, तो आपका हो गया kg per meter is the mass density। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर मेरे को मास डेंसिटी पता है which is the mass per unit length, can I find the mass of this length? Of course we can, why not, है ना, बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हैं। It means I'm going to easily find the value of dm। dm क्या है, स्मॉल मास डेंसिटी, लाइक स्मॉल मास ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट। तो dm क्या हो जाएगा, इसका छोटू सा लेंथ लैम्डा टाइम्स द छोटा सा लेंथ, बिकॉज लैम्डा इज द लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। मेरे को लैम्डा पता है जी, तो लैम्डा इज हाउ मच, m अपॉन l, आपका dx है, रहने दो, लेट इट बी dx। तो मेरे को dm तो निकल गया सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात। नाउ कम टू द r पार्ट। इस केस में क्योंकि वी टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, इसका सेंटर ऑफ मास y में नहीं जाएगा, तो आपको इसका निकालना है क्या, सिर्फ x सेंटर ऑफ मास निकालना है। देयर इज नो वर्टिकल हाइट, तो अपने को दिक्कत है नहीं। सो एक बात आप लिख सकते हो, इसका y सेंटर ऑफ मास जो है वो 0 है, क्योंकि इसी को एक्सिस मान लो आप, टिक 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 है ना, ऐसे एक्सिस मान लो, एक्स एक्सिस, और इसको वाई एक्सिस मान लो। तो किसी भी अगर मास ऊपर है ही नहीं तो हाइट क्यों ही होगा, है ना। तो बेसिक सी बात है कि मास इसका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है। इस पार्टिकल, सिंस इट इज अ वेरी एलिमेंट्री पार्टिकल, तो कैन आई से दैट इसका सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू लाई एट अ डिस्टेंस ऑफ x इटसेल्फ, क्योंकि दैट इज अ एलिमेंट्री पार्टिकल और उसका मास, सेंटर ऑफ मास सेम ही प्लेस पे होता है। इट मींस इन दिस केस I have to find what? I have to find x center of mass. So बच्चों आप लिख सकते हो integration of dm x upon integration of dm, to be very precise। हमने इसको ऐसे लिख लिया, this is a general one। अपने को ये चाहिए dm मिल गया है, m upon l dx, x का वैल्यू x ही है इस केस में, तो अपने को क्या चाहिए, अब तो इंटीग्रेशन लगा देते हैं और कोई मुश्किल वाली बात अब है नहीं। तो x सेंटर ऑफ मास dear kids is going to be integration of dm, फटाफट यहां से ले लो, m upon l dl dx, sorry, m upon l dx, and the x is going to be x is how much, x itself, क्योंकि डिस्टेंस कितना हमें मान रखा है, x मान रखा है, और नीचे क्या हो गया, अपॉन dm, इंटीग्रेशन ऑफ dm, तो भी हो गया m upon l dx, राइट। लेट अस पुट द लिमिट। लिमिट किसका पुट करते हैं, जिसका जो वेरिएबल्स होता है, और यहाँ पे m वेरिएबल है क्या, ऑब्वियसली नहीं। लेंथ वेरिएबल है क्या, नहीं। व्हाट इज वेरिएबल, x इज वेरिएबल। अब x कहां से कहां तक जा सकता है, x कैन गो फ्रॉम 0 टू l, 0 से l तक x का वैल्यू जा सकता है। इट मींस द लिमिट शुड बी फ्रॉम 0 टू l, नो हेजिटेशन इन सेटिंग द लिमिट्स, है ना जी। ओके, m इज अ कांस्टेंट, लेट अस टेक आउट द m कॉमन, सो आई एम गोना हैव m अपॉन l कॉमन, अंदर क्या बच गया, x dx, है ना, 0 टू l। Same thing over here, take out the m upon l common, we'll be having just dx integration 0 to x। ये तो भैया गए कटपिट, है ना, खत्म, बचाएं क्या, खत्म, अच्छा वो खत्म। Okay, so x center of mass dear kids is going to be x square upon 2। सही है ना, हाँ, x square upon 2। कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं, ठीक है ना, स्मॉल d, है ना, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। लिमिट 0 to l of course, and here also 0 to l। इंटीग्रेशन ऑफ dx is x, ठीक है, इतना आपको पता है, I'm sure। ओके, फटाफट वैल्यू पुट कर दो, और क्या, अब क्या ही बचा है, l स्क्वायर अपॉन 2 हो गया यहाँ पे, और नीचे क्या हो गया, 0 माइनस 0 हटाओ इसको,
एल, टिक टिक। तो एक्स सेंटर ऑफ मास बच्चों क्या आ गया, एल अपॉन 2। एल क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड। इसका क्लियर मीनिंग है कि सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू फॉल इन सेंटर ऑफ द रॉड। इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ रॉड पे फॉल करेगा। तो ये कोई मुश्किल वाली बात तो बिल्कुल अपने को दिख नहीं रही है ना, आप इसको मजे में सॉल्व कर लोगे। हाँ, लॉजिकली आप बोल सकते हो सर इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे, ऑब्वियसली बात है, बट ये मेथड सिखाने के लिए मैंने किया। इसका फटाफट रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग, चूज द एलिमेंट्री पार्टिकल। सेकंड थिंग, find the mass of that elementary particle. Before that, definitely you need to find the mass density. Linear है तो linear, aerial है तो aerial, और volumetric है तो volumetric, है ना। बहुत अच्छे। तो अपने को mass density निकालना होता है। Then we can find the small mass of that elementary particle, और फिर अपने को decide करना होता है कि will the center of mass is going to fall in the x as well as in the y coordinates। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे को दिख रहा है कि center of mass is going to fall in the x coordinate, x ही axis पे lie करेगा। तो center of mass, y coordinate of center of mass is 0, इसको बोलते हैं y coordinates of center of mass। center of mass क्या है, एक पोजीशन है, एक पॉइंट है, लोकेशन है। तो उस लोकेशन को हम 2D में देखें, 3D में देखें या 1D में देखें, वो हम पे डिपेंड करता है और क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो अगर वो 2D में है तो उसके पास x कोऑर्डिनेट भी होगा और y कोऑर्डिनेट्स भी होगा। अगर वो 3D में तो x y z तीनों होगा, और अगर 1D में है तो आपका जो भी एक लेंथ है x y जो भी है उसमें होगा। हमने देखा कि ओवर हियर इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का वो तो होगा, बट वाई नहीं होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई करेगा। तो वाई सेंटर ऑफ मास इज 0, हमने उसको फटाफट लिख दिया। एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है भैया, डीएम आर की जगह एक्स होगा, बाकी आपको पता ही है, इंटीग्रेशन हमने स्टार्टिंग में इसको बता रखा है। अब क्या हो गया, सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन, इसमें हमने डिस्कस किया था वीडियो के इनिशियल पार्ट में। उसके बाद I'm going to put the values of dm and x of course, and then we're going to set the limits, और हम इंटीग्रेट करके चुपचाप उसका आंसर निकाल लेंगे। प्रोसेस सही है, यही है, आपको यही समझना है। इसमें दो चीज है कि आपको एलिमेंट्री पार्टिकल का डिसीजन जो चॉइस है वो आपको वाइजफुली वाइजली करना होगा, आप उसमें गलती नहीं कर सकते हो, वरना हो जाएगा गोलगप्पा, है ना। चलिए सेकंड फटाफट लिखिए, रिंग। फर्स्ट हमने निकाल लिया रॉड का, इट वाज क्वाइट एन इजी वन। अब हम रिंग का निकालेंगे। तो इफ आई टॉक अबाउट द रिंग, रिंग हो सकता है कंप्लीट रिंग और कुछ कटा पिटा। कंप्लीट रिंग का तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर एक रिंग का उसका सेंटर भी होगा, तो दैट्स नॉट गोना बी अ डिफिकल्ट टास्क। अपने को क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी रिंग। हेडिंग डालो, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी रिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी रिंग। देखो ये सब बेसिक्स है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो थोड़ा स्पीड मैंने ऊपर रखा है, रीजन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, when I'm gonna do some high level questions, वहां पे मैं स्पीड स्लो कर दूंगा, बिल्कुल भी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। Don't you worry, I'm gonna manage the speed. Okay, number 2, semi ring, semi ring। अब हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे। अच्छी बात है, एक सेमी रिंग ले लो। लेट्स टेक अ खतरनाक रिंग। दिख रहा है क्या? अब चलो दिख रहा है तो दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, मान लो कि बच्चों ये रिंग है, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने मानने को तो सब कुछ मान लेते हैं, तो इसको भी आप लोग प्लीज इसको सेमी रिंग मान लो। यार खुद से देखने में खराब लग रहा है, बट ठीक है चलो। तो लेट अस से दिस इज द सेंटर ऑफ द सेमी रिंग, और बच्चों इसका एक रेडियस है हमारा, इसका इस रिंग का एक रेडियस मान लो r मान लो। इस टोटल रिंग सेमी रिंग का मास है m और रेडियस है r। अब अपने को निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास। स्टेप्स वही सिंपल स्टेप्स अपने को फॉलो करना है। अपने को क्या करना है, वी हैव टू चूज द एलिमेंट्री पार्टिकल, इसका मास डेंसिटी निकालना है, अपने को डिसाइड करना है whether it's gonna fall on the x और y एक्सिस, उसी हिसाब से x सेंटर ऑफ मास या y सेंटर ऑफ मास निकालना है, और उसके बाद इंटीग्रेशन करके फाइनली आफ्टर सेटिंग द लिमिट वी शुड गेट द आंसर। देखो दुनिया में एक सिमेट्रिसिटी नाम का कोई चीज होता है, हम लोग बोलते हैं उसको सिमेट्रिसिटी और सिमेट्रिकल एलिमेंट्स। ये जो सेमी रिंग है बहुत ही सिमेट्रिकल है, हाफ साइड आर बोथ इक्वल, ये दोनों बराबर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास दोनों का बैलेंस्ड हो जाएगा, राइट। इट मींस सेंटर ऑफ मास विल नॉट फॉल ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि सिमेट्री है, दोनों इक्वल है, दोनों सेम है, आइडेंटिकल है। इट मींस द सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू फॉल समवेयर ऑन दिस रिंग का वर्टिकल एक्सिस, इसी पे सेंटर ऑफ मास कहीं वो लाई करेगा। करेक्ट है जी, सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू लाई समवेयर ऑन दिस रिंग। अब इसमें एलिमेंट्री पार्टिकल क्या लेंगे, ये सिर्फ सेमी रिंग है, तो मास इज ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड हियर, मास पूरा का पूरा यहाँ पे। तो इन केसेस में हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल यहां ले सकते हैं, इसको आप एलिमेंट्री पार्टिकल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको रिलेट कैसे करोगे, एलिमेंट्री पार्टिकल को मूवमेंट को कैसे दिखाओगे,
रॉड में क्या था, x पे था, तो x से 0 से x बढ़ते बढ़ते l तक चला गया। इस केस में मूवमेंट इसको आप कैसे दिखाओगे कि यहां से लेकर यहां तक कवर अप कर रहा है। सिंस इट इज एंगुलर मूवमेंट, तो हम लोग इसको डिनोट करते हैं एक थीटा का यूज करेंगे। लेट अस सपोज कि हमने एट एनी एंगल थीटा को इसमें इस एलिमेंट्री पार्टिकल को लिया है, एंड बिकॉज ऑफ दिस थिकनेस इसको एंगुलर छोटा सा डी थीटा मान लो। देखो एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करने का मोटिव क्या होता है कि वी कैन मूव इट फ्रॉम द वेरी इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट। आप उसको वहां से वहां तक मूव कर सकते हो। दैट्स अ होल रीजंस टू चूज एलिमेंट्री पार्टिकल, क्योंकि आप इसका लोकस को लोगे तो दैट शुड गिव यू दैट सेम एलिमेंट ऑफ व्हिच द एलिमेंट्री पार्टिकल यू डिसाइडेड। सिंपल सी बात है। इन द रॉड वी कुड हैव मूव्ड फ्रॉम 0 टू L, बट इस केस में इसको मूव करने का तरीका क्या होगा वो हमको देखना है। करेक्ट है जी, हमको देखना है कि ये कैसे मूव करेगा। ऑब्वियसली एंगुलर मूवमेंट होगा ना। तो लेट अस से एट एनी एंगल थीटा वी हैव अ स्मॉल एलिमेंट व्हिच इज मेकिंग सम स्मॉल डी थीटा एट द सेंटर। इसको मान लो ओरिजिन है ना, ठीक है। तो अपने को रिलेशन पता है, इफ द रेडियस इज r, अगर रेडियस बच्चों r है तो ये कितना हो जाएगा r d थीटा। ये बात नहीं समझ में आता है तो मेरे को बताओ, ऐसे वेक्टर जाके देखना, उसमें हमने इसको सर्कुलर मोशन में भी बताया मैंने, और वेक्टर में भी इसको मैंने बता रखा है। एनीवेज ये हो गया आपका r, ठीक है जी, इतना तो क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द लीनियर मास डेंसिटी। मेरे को चाहिए क्या, लैम्डा। आई वांट द लीनियर मास डेंसिटी, राइट। तो लीनियर मास डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास अपॉन द टोटल लेंथ। सो सर्कमफेरेंस इज 2 पाई r, और क्योंकि हाफ है तो 2 pi r is the normal circumference of a circle, but since it is half, so I'm going to divide by 2. That's going to cancel it up. So lambda, my dear kids, is going to be m upon pi r. आपका हो गया kg per meter। कोई दिक्कत? So it is also the linear mass density। अपने को देखिए m upon pi r। All good? Cool. Now I'm going to find the small mass of the small element। तो मेरे को क्या चाहिए, नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द स्मॉल मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। उसको स्मॉल मास बोल देते हैं, बट ठीक है। स्मॉल डीएम आई वांट टू फाइंड। तो डीएम शुड बी हाउ मच, लैम्डा टाइम्स ऑफ स्मॉल एलिमेंट। तो लीनियरली कितना है, आर डी थीटा। तो आर डी थीटा, so this is going to be your small dm। what is the value of lambda, m upon pi r। so dm is going to be m upon pi times of r times r d theta, what dr will be cancelled, and you will be ending up with dm is equals to m upon pi d theta। I believe कैमरे में आ रहा है in the frame, let me just check। बहुत अच्छा, yeah, it's coming up। so the small mass we have got is your m upon pi d theta। m upon pi d theta अपने को इसमें मिल गया। कोई दिक्कत किसी को? वेरी गुड, होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, आई नो द सेंटर ऑफ मास इज नॉट गोइंग टू लाई ऑन द एक्स एक्सिस, सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस भी होगा, वो 3। तो अपने को इस एलिमेंट्री पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। इट मींस आई हैव टू फाइंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ center of mass, and my dear kids, that should be integration of y dm upon dm, and we clearly know what is y. Y is the coordinate of the center of mass of elementary particle। y जो है उसका distance है of the center of mass of the elementary particle। यहाँ पे हमने एलिमेंट्री पार्टिकल किसको चूज करा है, इन भाई साहब को चूज करा है। तो इसका डिस्टेंस निकालना होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना होगा अपन को। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या चाहिए मेरे को, इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज गोना बी टिक 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 टिक। दिस इज योर वाई माय डियर किड्स, दैट इज योर वाई। ये आपका वाई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस हैव अ लुक इन दिस ट्रायंगल ओ आर। इसको मान लो कुछ भी पी मान लो, ठीक है। ओ आर पी, साइन थीटा शुड बी हाउ मच, वाई अपॉन आर। तो sin theta is going to be y upon r, that means y should be r sin theta। चलो कहानी खत्म, game over। Why? Because we have the value of dm and we have the value of y। rest is a piece of mathematics। कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इसको मजे में आराम से कर लोगे, I believe, है ना। ठीक है जी। तो we're gonna have what, y coordinate of the center of mass is going to be y dm। let me put the value of y, r sin theta, r sin theta dm, I know that's m upon pi sort of d theta, and integration of that upon, देखो इसका इंटीग्रेशन तो इट्स गोना बी मास ओनली, बट ठीक है चलो हम लोग एक बार फिर से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
m upon pi d theta integration. Now, if you can look over here, r is not a variable, m is not a variable, definitely pi is a damn big constant, वो तो variable बिल्कुल भी नहीं है. तो variable है क्या बच्चों? Theta is variable. Theta, अगर हम इस elementary particle को, let me go slowly, if I take this elementary particle from here to here, at this particular point, this theta should be how much? 0. और जब एलिमेंट्री पार्टिकल घूमते फिरते मजे करते हुए अगर एलिमेंट्री पार्टिकल यहां आता है, then theta is going to be 180 degree pi. It means it is going to be 0 to pi. I believe मैंने आपको समझाने में सफलता हासिल कर लिया है कि भैया how to put the limits of this elementary or variable things over here. कोई दिक्कत? तो y center of mass कितना हो जाएगा बच्चों? Y center of mass m upon pi would be out, m upon pi would be out, cancel. R is going to be out, let it be over here. Sin theta d theta, integration of sin is what? Minus cos theta. So we're going to have minus cos theta, minus मैंने बाहर लिखा, cos theta अंदर. इंटीग्रेशन पे टाइम स्पेंड करने का मेरे का कोई मर्जी है नहीं. I believe you know how to find the center of like integration. If you do not know, you should go to the videos where I've taught you the basic mathematics, including the integrations as well as the differentiation. I believe you guys are okay with this integration process. Integration of d theta is just theta, well that should be 0 to pi. Rest is going to be how much? We just need to sort of integrate. हो गया, limits को put कर दो. That's going to be negative of r. Cos pi is -1 and sort of cos 0 is also 1. So this is going to be how much? Just pi minus 0. चलो मैंने 0 भी लिख दिया पहली बार. This is going to be how much? Negative 2 times of r. So y center of mass, my dear kids, is going to be 2 times of r upon pi. It means for the ring, the center of mass is going to lie somewhere here, और इसका distance कितना होगा? 2r upon pi from this particular point. ये आपका हो गया center of mass. आपका center of mass यहाँ पे lie कर रहा है. बात समझ में आ रहा है? Everyone, all good? फटाफट इसको लिख लो, समझ लो. अल्टीमेट एम था हमारा आज के इस लेसन का कि आपको पूरा प्रोसेस पता हो कि हम कैसे करते हैं, हाउ डू वी डू इट. हमको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए ताकि इफ आई गेट अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जहां पे आई नीड ऑल दिस स्टफ, आई शुड नॉट बैफल डाउन, मुझे घबराना वहां पे नहीं है. चलिए फटाफट, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन जस्ट नोट इट डाउन. आई एम गोना इरेज एंड वी गोना मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज योर सेमी डिस्क. हमने देख लिया रॉड का, देख लिया रिंग का, देख लिया. अब हम थोड़ा डिस्क के बारे में करेंगे. तो डिस्क क्या है? एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मास एक पूरे उसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होकर रहता है. द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स एरिया, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्क. एक पूरे डिस्क का मास तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर पे ही होगा. तो वी आर नॉट गोइंग टू डील विद द डिस्क का मास ऑफ सेंटर, वी आर गोइंग टू डील विद द सेमी डिस्क. हम सेमी डिस्क के बारे में चर्चा करने वाले हैं गाइस. वी गोना टॉक अबाउट द सेमी डिस्क. और मुझे पता है आप अभी तक सीख लिए होंगे कि कैसे एलिमेंट्री पार्टिकल लेना है और कैसे उसके लिमिट्स को पुट करके उसको स्मॉल मासेस को निकालकर इंटीग्रेट करके अपने आप को आंसर तक पहुंचाना है. नंबर 3 क्विकली इज गोना बी सेमी डिस्क. सेमी डिस्क. ओके, नाउ लेट अस मेक अ डिस्क. एक सेमी डिस्क बनाते हैं हम लोग फ्रॉम लाइक दिस. यार ये बड़ा मुश्किल वाला बात है. आई एंड अप मेकिंग अ पैराबोला. बड़ा मुश्किल है. सो थोड़ा अच्छा है, बेटर है, हमारा काम इससे चल जाएगा. तो बच्चों मान लो इसको है इस सेमी डिस्क. इट मींस मास विल बी थॉरोली डिस्ट्रीब्यूटेड. लेट अस से दैट इट्स सेंटर इज हियर. इसका सेंटर अपने को यहां पे मान लिया और इसका रेडियस जो है बच्चों दैट इज r. इट्स वेरी मच अगेन सिमेट्रिकल थिंग. तो मेरे को पता है इसका मास ले लो m, टोटल मास m, रेडियस इज r. अपने को निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास. वेल इट्स क्वाइट क्लियर, द सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू फॉल ऑन दिस वन. इसी पे सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं लाई करेगा बिकॉज इट्स वेरी मच सिमेट्रिकल. ठीक है, सेम थिंग आई एम गोना चूज अ एलिमेंट. बट इस केस में एलिमेंट क्या चूज करोगे? क्या यहां पे एलिमेंट चूज कर ले? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मास तो पूरे के पूरे में है. आप डिस्क को एक छोटे से एलिमेंट लेके ऐसे कैसे बना सकते हो? दैट इज जस्ट गोना गिव यू रिंग. वो रिंग देगा आपको, वो आपको डिस्क नहीं देगा. तो कैन नॉट चूज लाइक यहां छोटा सा मास ले लो और कहानी खत्म कर लेते हैं ना. अब देखो एक डिस्क को कैसे बना सकते हो आप. एक इमेजिन करो आपके पास एक सर्कुलर, छोटा सा सर्कुलर रिंग है.
और उससे बड़ा एक और, उससे बड़ा एक और, उससे बड़ा एक और है। आप सारे रिंग को एक के ऊपर एक ऐसे प्लेस कर दोगे, आपको डिस्क मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक छोटा सा सर्कुलर थिंग, आप उसको ऐसे 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 देखो, एक रिंग, इसके ऊपर एक और रिंग, और इसके आगे ऐसे ऐसे करते जाओगे ना, ऑफ स्मॉल स्मॉल थिकनेस, आपको क्या दिख रहा है? एक डिस्क बन गया, एक सॉलिड बन गया, है ना। तो डिस्क का जो एलिमेंट्री पार्टिकल होगा वो एक रिंग होगा ऑफ बहुत स्मॉल थिकनेस, है ना। तो एक रिंग मान लो इसका एलिमेंट्री पार्टिकल एट अ डिस्टेंस। यार मैंने ना जाके बचपन में ड्राइंग क्लास सीखना है, अयो ठीक है जी, है ना। इसका छोटा थोड़ा 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 थिकनेस थिकनेस थिकनेस। हाँ, ये अपने आप को समझाने के लिए था कि आई शुड एंड अप मेकिंग अ राइट डायग्राम, और कुछ नहीं। तो ये हो गया सही, है ना, ठीक है। एक डिस्टेंस आर पे इस रिंग को मान लो, तो बेसिकली इसका रेडियस ऑफ दिस रिंग आर हो गया, और इसका थिकनेस प्यारे बच्चों इसको मान लो आप डी आर, क्योंकि थिकनेस नहीं होगा देन तो फिर सारे रिंग्स उसी पे आ जाएगा ना। थोड़ा सा थिकनेस रखेंगे तभी तो रिंग आगे बढ़ता जाएगा, कारवा बढ़ता जाएगा और डिस्क मिल जाएगा। ऑल गुड, वी शुड हैव अ लिटिल बिट ऑफ थिकनेस ओवर देयर, फेयर इनफ। ओके, तो हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है बच्चों? दिस इज माय एलिमेंट्री पार्टिकल। आपका एलिमेंट्री पार्टिकल जो है, एलिमेंट्री पार्टिकल जो है वो आपका एक रिंग है ऑफ रेडियस आर। इट्स अ रिंग, एलिमेंट्री पार्टिकल इज अ रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर, रेडियस स्मॉल आर। बहुत अच्छे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द मास डेंसिटी। यहां पे क्या होगा? एरियल मास डेंसिटी होगा। इस केस में वी विल बी हैविंग द एरियल मास डेंसिटी ना। इस केस में क्या होगा? एरियल मास डेंसिटी, और एरियल मास डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, है ना। सिग्मा शुड बी मास अपॉन द एरिया, टोटल एरिया। तो इसका मास हमने माना है m, अच्छी बात है, लेट इट बी। एरिया क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, बिकॉज पाई आर स्क्वायर सर्कल का होता है, हाफ है तो ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो मैं 2 को नीचे न लिख के सीधा ऊपर लिख रहा हूं, टाइम बचाना है इसका, है ना। तो 2m मैंने 2 बार लिख दिया फाइनली, चलो दैट्स ओके। तो दिस इज योर केजी पर मीटर स्क्वायर। आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा। यार मेरा आर खतरनाक है, रेनॉल्ड्स पेन के सिग्नेचर स्टैम्प जैसा है, तो मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं। Whenever I write this kind of R, I just think of one of my student. वो ऐसा लिखता था, मैं सब बोलता सर R है क्या है वो। Anyways, coming back to the track. So here we have sigma, हमने निकाल दिया। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो ज्यादा पंगे लेना है नहीं यहाँ पे, एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, I'm sure आपने देखा होगा, सुना होगा कहीं ना कहीं। आप इसको ना इस दोनों एंड से पुल कर दो, हुप। If you pull it from both the ends, हुप, ये क्या बन जाएगा? छोटा सा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन जाएगा। It is gonna be in the shape of a rectangular strip. ऐसा कुछ बन जाएगा, टिक 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 टिक, जिसका आप डीआर विड्थ मान सकते हो। और लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों? इसका हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस, मतलब कि इफ दिस कुड हैव बीन अ कंप्लीट सर्कल, तो सर्कमफेरेंस कुड हैव बीन 2 पाई आर, बट क्योंकि एक सेमी सर्कल है, देन दिस इज गोना बी जस्ट पाई टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। ओके, आई वाज गोइंग टू मेक अ मिस्टेक, थैंकफुली आई डिड नॉट डू दैट, है ना। स्मॉल आर क्यों? क्योंकि इसका रेडियस तो स्मॉल आर ही है ना, इट्स रेडियस इज स्मॉल आर। चलो एक बार ब्लू कलर में मैं लिख के आपको दिखा देता हूं। तो आपका क्या हो गया? लेंथ एंड द विड्थ, दिस इज रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, आई कैन फाइंड द स्मॉल एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, दैट शुड बी हाउ मच? पाई आर टाइम्स ऑफ डी आर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई नो द स्मॉल एरिया, आई नो द स्मॉल, आई नो द सिग्मा व्हिच इज द मास डेंसिटी, मेरे को भी पता है। तो छोटा सा मास निकालना, आई थिंक ये आ रहा होगा ना फ्रेम में। हाँ, ये बड़ा इश्यूज होता है भाई ये फ्रेम चेक करने का विद सिंगल रिकॉर्डर। सो जो हमारा मास हो गया बच्चों, दैट शुड बी हाउ मच? डीए टाइम्स ऑफ सिग्मा। तो दैट इज गोना बी पाई आर डी आर इनटू सिग्मा, दैट इज 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर। ऑल गुड। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? पाई शुड बी कैंसिल्ड। Well, yeah, that's all I believe, nothing else is getting cancelled. That implies that small mass dm should be equals to 2mr, लिख सकते हैं 2m upon capital R square, all good, times of r dr, times of r dr। ये हमने small mass निकाल दिया। Once I'm done finding the small mass, what next? I'm going to find x center of mass is going to be 0. X coordinate of center of mass is going to be 0 because the x coordinate is going to be इसी पे कहीं होगा, तो इस पे x coordinate 0 होता है। चलो y coordinate of center of mass निकालते हैं। So y coordinate of center of mass should be given as y times of
dm integration because it's a continuous body dm है ना ऐसे. Now let us put the values. तो y का वैल्यू कितना हो गया? y कहां पे है? एलिमेंट्री पार्टिकल कहां पे है? वो तो r पे मेरे को दिख रहा है ना, नहीं ना ना. Okay, sorry about that. Well, this is a ring. एलिमेंट्री पार्टिकल क्या हमने देखा है? रिंग. रिंग का सेंटर ऑफ मास इज दिस. Let me repeat again, this y is the center of mass of the elementary particle. और आपने elementary particle क्या लिया है? एक रिंग माना है. मैंने इसको इसीलिए यहां पे लिखा था. That's the reason why I noted it down. It is the elementary particle is the ring. और आपको पता होना चाहिए कि भैया कि रिंग का जो होता है सेंटर ऑफ मास, अभी हमने किया था, रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r/π होता है. कहां से? फ्रॉम दिस पॉइंट. तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों, दैट इज गोना बी 2r, छोटू 2r, that is going to be 2r/π. And now dm is how much? We already have that. That should be 2m/r square. r times of dr, तो r square हो गया और बच्चों आपका हो गया dr. आई बिलीव मैंने सबको सही लिखा है, कुछ गलत होगा आप उसको करेक्ट कर लेना. चलिए जी, इंटीग्रेशन. और नीचे मैं चुपचाप लिख दूं आपका मास लिख दूं मैं, कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि भैया नीचे क्या है? डीएम है ना, वो डीएम तो टोटल मास ही इसका होगा. तो मैं फटाफट इसको एम लिख दे रहे हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना अपने को, है ना. और लिमिट क्या हो जाएगा रेडियस का? वेरिएबल क्या है? रेडियस है ना, तो 0 से लेकर कैपिटल आर तक जा सकता है. दैट कुड बी 0 टू कैपिटल आर. ये आपका हो गया वाई सेंटर ऑफ मास. फटाफट सॉल्व कर लेंगे इसको विदाउट डिले. तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बच्चों? बुड़ुम बुड़ुम बुड़ुम, एम तो कैंसिल हो गया, हटा देंगे उसको. 2 हो गया 4 और हो गया 4 और नीचे हो गया पाई आर स्क्वायर. उसमें तो कुछ होगा नहीं, अब बच गया अंदर आर स्क्वायर, है ना जी. एम कैंसिल्ड. आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया r³ 3. बहुत अच्छे सर, गजब मारते हो आप छलांग. आपको भी करना आना चाहिए, बिल्कुल भी आप छोटे बच्चे हो नहीं कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप करें. तो टेक इट इन पॉजिटिव सेंस और आप इसको करना सीखिए ना. तो 4/3 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? r³ 3. तो 3 तो बाहर हमने लिख दिया, ये हो गया r³. कुछ कट रहा है क्या? कुछ तो कट रहा है, है ना. तो क्या हो गया? 4r/3 पाई. इट मींस जो आपका y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है ऑफ अ डिस्क, और ऐसे भी डिस्क सेंटर ऑफ मास लिख सकते हो डायरेक्टली, वो आपको हो जाएगा 4r/3 पाई. आई बिलीव आप लोग इसको कर चुके हैं और आप इसको समझ लियो कि इसका सेंटर ऑफ मास 4r/3 पाई पे होता है. तो बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे होगा 4r/3 पाई. तो मान के चलो कि कहीं इधर हम दिखा देते हैं, इसको डिनोट कर देते हैं. इधर ही सेंटर ऑफ मास इसका होगा, जो कि 4r/3 पाई होगा. ऑल गुड, सबने इसको समझ लिया है, सबने इसको नोट कर लिया होगा आई बिलीव, है ना. चलिए, so I've just told you couple of derivations of center of mass like rod, ring in the disc. There are more, मैं उसको करवा दूंगा या फिर उसके फॉर्मूले नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में आपको मैं एक पूरा लिस्ट बनाकर दे दूंगा. बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट वी नीड इज द फॉर्मूले व्हाइल डूइंग द बिगर क्वेश्चन. ऑल गुड, ठीक है जी. सो टिल देन आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो lesson very soon. Till then keep learning and keep studying. Also do not like to say, like and subscribe, क्योंकि if you do that, that's going to help me to promote. And of course, if I get promoted and if you guys like my way of teaching, it's going to reach out to a lot of people. ठीक है जी. Well, that's all for the day. Thanks for watching. I'm going to see you in the next video. Take care. Bye everyone.